نوٹس ہوں, کیا بلٹ فارم میں نوٹس ہوں, کیا اپنے بنائے ہوئے نوٹس ہوں یا کسی اور کے بارڈ نوٹس ہوں. ایک تو ہم نوٹس میکنگ کی. السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات. آج کی ویڈیو بنانے کے دو مقاصد ہیں. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے نوٹس میکنگ اسکل کے اوپر کہ ایک تو نوٹس بنائے کیسے جاتے ہیں, کیا اپنے نوٹس بنانا ضروری ہیں, کیا ڈیٹیل نوٹس ہوں, کیا بلٹ فارم میں نوٹس ہوں, کیا اپنے بنائے ہوئے نوٹس ہوں یا کسی اور کے بارڈ نوٹس ہوں. ایک تو ہم نوٹس میکنگ کی جو اسکل ہے اس کے اوپر بات کریں گے. لیکچر کا دوسرا حصہ ہوگا, ہم ایک ٹاپک کریں گے جو کہ ہماری آن لائن کرنٹ افیئر سیشن جو کہ السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات. آج کی ویڈیو بنانے کے دو مقاصد ہیں. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے نوٹس میکنگ اسکل کے اوپر کہ ایک تو نوٹس بنائے کیسے جاتے ہیں, کیا اپنے نوٹس بنانا ضروری ہیں, کیا ڈیٹیل نوٹس ہوں, کیا بلٹ فارم میں نوٹس ہوں, کیا اپنے بنائے ہوئے نوٹس ہوں یا کسی اور کے بارڈ نوٹس ہوں. ایک تو ہم نوٹس میکنگ کی جو اسکل ہے اس کے اوپر بات کریں گے. لیکچر کا دوسرا حصہ ہوگا, ہم ایک ٹاپک کریں گے جو کہ ہماری آن لائن کرنٹ افیئر سیشن جو کہ ہم زوم کلاؤڈ میٹنگ پہ پڑھتے ہیں اس کی سیریز میں ایک ٹاپک ہے جس کا نام ہے ہائبرڈ وارفیئر اینڈ پاکستان. اور اس میں ہم 3-4 سوالوں کے اوپر بات کر لیں گے کہ ہائبرڈ وارفیئر کیا ہے, کیا ایسے انٹرنیشنل اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں تبدیلیاں آئی ہیں جس کی وجہ سے ریاستیں جو ٹریڈیشنل وارفیئر ہے اس سے ہٹ کے نان ٹریڈیشنل اور ہائبرڈ وارفیئر کی طرف گئی ہیں. اس کے اوپر بات کریں گے. پھر ہم اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے کہ بھائی پاکستان میں ہائبرڈ وارفیئر یہ جو کے خلاف جو ہائبرڈ وارفیئر ہے اس کی کیا ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں, جو کہ 2019 کے کرنٹ افیئرس میں بھی یہ کویسچن پوچھا گیا تھا. ہم اس کی کریٹیکل انالیسس کریں گے اور ہم پھر کنکلوژن کی طرف بڑھیں گے. So without wasting any further time, let's go to our today's discussion. So as I told you کہ ہم آج دو آبجیکٹیوز کے اوپر بات کر لیں گے. ایک ہمارا ہوگا ہاؤ ٹو میک نوٹس اور دوسرا ہمارا آبجیکٹیو ہوگا ہائبرڈ وارفیئر. تو نوٹس میکنگ اسکل کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ نوٹس کس طرح سے بنائے جائیں. جتنے بھی ایسپائرنٹس ہیں جو کہ بالکل بگنر تیاری شروع کرتے ہیں تو ان کے ساتھ سب سے پرائم ایشو یہ ہوتا ہے کہ نوٹس میکنگ کیسے کی جائے. ایون آپ میں سے وہ انڈیویجولس جو کہ سال 2020 کی سی ایس ایس یا 2019 کی سندھ پبلک سروس کمیشن پی ایم ایس دے چکے ہیں اور اب ایک نئے ایگزام کے انتظار میں ہیں, ان کے لیے بھی یہ والی ڈسکشن جو ہے نا فائدہ مند ہوگی. نوٹس میکنگ سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بات کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ سبجیکٹ کیسے پریپیئر کرتے ہیں. ایک سبجیکٹ پریپیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس ایٹ لیسٹ یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی ان 3 چیزوں میں یہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے 10 سالوں کے 5 پیپرز ہونے چاہیے. سیکنڈ 10 سال یا پھر 2016 سے لے کے 20 تک تو 5 پیپرز لازمی ہونے چاہیے. سیکنڈلی آپ کے پاس سبجیکٹ کی کورس آؤٹ لائن ہونی چاہیے اور تیسرا آپ کے پاس سبجیکٹ کی جو 2 کتابیں وہ ہونی چاہیے. ایک اسٹینڈرڈ بک ہونی چاہیے, ایک مارکیٹ بک ہونی چاہیے. آپ اگر دیگر سورسز سے پڑھنا چاہیں تو بھی آپ اس پرٹیکولر سبجیکٹ کو تیار کر سکتے ہیں. دیر از نو ہارم ان دیٹ. جب نوٹس میکنگ کی باری ہے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ٹاپک سلیکٹ کر لینا ہے اور پھر اسے 2 سے 3 سورسز سے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے. پڑھائی کے دوران آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنی بھی چیزیں آپ پڑھیں اس سے آپ میکسیمم ہیڈنگس میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, فیچرز, کریٹیکل انالیسس, challenges, indicators, way forward and so on. And case studies یا اس کے مختلف سلیوشنز ہیں اس کے اوپر بات کر لینی ہے. یعنی کہ جتنے بھی آپ ریڈنگ کریں گے اسے آپ کس میں ٹرانسفارم کریں گے؟ آپ اسے ملٹیپل ہیڈنگز میں ٹرانسفارم کر لیں گے. جب آپ نے یہ کر لیا ہوگا تو آپ نے اب رائٹنگ فیز کی طرف آ جانا ہے جو کہ آپ کا تیسرا اسٹیپ ہوگا. آپ اپنی لینگویج میں بھی لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کی انگریزی ٹھیک ہے آپ لینگویج بارو بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کی خود کی لینگویج ٹھیک نہیں یا یہ جو گیون ٹیکسٹ ہے اس میں بہت زبردست طریقے سے بڑے. السلام علیکم عزیز خواتین و حضرات. آج کی ویڈیو بنانے کے دو مقاصد ہیں. سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے نوٹس میکنگ اسکل کے اوپر کہ ایک تو نوٹس بنائے کیسے جاتے ہیں, کیا اپنے نوٹس بنانا ضروری ہیں, کیا ڈیٹیل نوٹس ہوں, کیا بلٹ فارم میں نوٹس ہوں, کیا اپنے بنائے ہوئے نوٹس ہوں یا کسی اور کے بارڈ نوٹس ہوں. ایک تو ہم نوٹس میکنگ کی جو اسکل ہے اس کے اوپر بات کریں گے.
लेक्चर का दूसरा हिस्सा होगा, हम एक टॉपिक करेंगे जो कि हमारी ऑनलाइन करंट अफेयर सेशन जो कि हम जूम क्लाउड मीटिंग पे पढ़ते हैं, उसकी सीरीज में एक टॉपिक है जिसका नाम है हाइब्रिड वॉरफेयर एंड पाकिस्तान। और उसमें हम 3-4 सवालों के ऊपर बात कर लेंगे कि हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, क्या क्या ऐसे इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट में तब्दीलियां आई हैं जिसकी वजह से रियासतें जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर है उससे हटके नॉन ट्रेडिशनल और हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ गई हैं, उसमें उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम इसके ऊपर भी बात कर लेंगे कि भाई पाकिस्तान में हाइब्रिड वॉरफेयर ये जो के खिलाफ जो हाइब्रिड वॉरफेयर है उसकी क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जो कि 2019 के करंट अफेयर्स में गेम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे और हम फिर कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। So without wasting any further time, let's go to today's discussion. So as I told you कि हम आज दो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात कर लेंगे, एक हमारा होगा हाउ टू मेक नोट्स और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा हाइब्रिड वॉरफेयर। तो नोट्स मेकिंग स्किल के ऊपर बात कर लेते हैं कि नोट्स किस तरह से बनाए जाए। जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जो कि बिल्कुल बिगनर एज अ बिगनर तैयारी शुरू करते हैं, तो उनके साथ सबसे प्राइम इशू ये होता है कि नोट्स मेकिंग कैसे की जाए। इवन आप में से वो इंडिविजुअल्स जो कि साल 2020 की सीएसएस या 2019 की पब्लिक सर्विस कमीशन पीएमएस दे चुके हैं और अब एक नए एग्जाम के इंतजार में हैं, उनके लिए भी ये वाली डिस्कशन जो है ना फायदेमंद होगी। नोट्स मेकिंग से पहले हम एक छोटी सी बात के ऊपर बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं। एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए आपके पास एटलीस्ट ये 3 चीजें होनी चाहिए। वो 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहली उन 3 चीजों में ये जो चीज है वो ये है कि आपके पास इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 10 सालों के पास पेपर्स होने चाहिए। सेकंड, 10 साल या फिर 2016 से लेकर 20 तक तक तो पास पेपर्स लाजमी होने चाहिए। सेकेंडली आपके पास सब्जेक्ट की कोर्स आउटलाइन होनी चाहिए और तीसरा आपके पास सब्जेक्ट की जो 2 किताबें वो होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए, एक मार्केट बुक होनी चाहिए। आप अगर दीगर सोर्सेज से पढ़ना चाहें तो भी आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन दैट। जब नोट्स मेकिंग की बारी है तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसे 2 से 3 सोर्सेज से अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ाई के दौरान आपने कोशिश ये करनी है कि जितनी भी चीजें आप पढ़ें उससे आप मैक्सिमम हेडिंग्स में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फीचर्स, क्रिटिकल एनालिसिस, challenges, indicators, way forward and so on, and case studies जहाँ उसके मुख्तलिफ solutions हैं उसके ऊपर बात कर लेनी है। यानी कि जितने भी आप रीडिंग करेंगे उसे आप किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप उसे मल्टीपल हेडिंग्स में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। जब आपने ये कर लिया होगा तो आपने अब राइटिंग फेज की तरफ आ जाना है, जो कि आपका तीसरा स्टेप होगा। आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं अगर आपकी अंग्रेजी ठीक है, आप लैंग्वेज बारो भी कर सकते हैं अगर आपकी खुद की लैंग्वेज ठीक नहीं, या ये जो गिवन टेक्स्ट है उसमें बहुत जबरदस्त तरीके से बड़े अच्छे एक्सप्रेशन में चीजें लिखी गई हैं, आप उन एक्सप्रेशंस को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करके उसे एक्चुअल एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नोट्स मेकिंग का अगला जो फेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले ये जहन में रख लें कि जो लिखना है आपने, आप उसे बुलेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप उसे बुलेट फॉर्म के अलावा यूं समझ लें कि डिस्क्रिप्टिव मैनर में भी लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि नोट्स में इतनी ज्यादा डिटेल ना हो, इतनी सिर्फ डिटेल होनी चाहिए, इतना डिटेल मैनर में आपने लिखा हुआ कि जब आप 6 महीनों के बाद इन्हीं नोट्स को रिवाइज करें तो कम से कम ये नौबत ना आए कि आपको दोबारा से किताब उठानी पड़े, क्योंकि इन नोट्स का मकसद ही यही है कि आपने किताबों से जो अपनी रिलायंस है वो खत्म करनी है। अब उसके बाद आपका चौथा स्टेप ये है कि आपने एक डिफरेंस मार्क करना है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इशू एंड द एस्पेक्ट ऑफ द इशू। इशू है, मिसाल के तौर पर आपने ये जो डिस्कशन है इसमें आपने कश्मीर इशू के ऊपर नोट्स बना लिए। एस्पेक्ट ऑफ द इशू, कश्मीर इशू के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, पास्ट पेपर्स वाले भी हो सकते हैं, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स वाले भी हो सकते हैं। पास्ट पेपर्स में जो कश्मीर इशू के ऊपर सवालात पूछे गए हैं उनकी तरफ आप बात कर लें तो मिसाल 3 सवाल पूछे गए हैं, आपने वो लाजमी इनकॉर्पोरेट करना है, यानी कि जो एस्पेक्ट पास्ट पेपर्स में पूछा गया है आपने वो भी इनकॉर्पोरेट करना है और जो कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव है आपने वो भी इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे 3 क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं पास्ट पेपर्स जो कि मैंने आपको कहा कि आपने अपने साथ रखने हैं कि भाई आर्टिकल 370 के रिवोक होने के बाद कश्मीर की सिचुएशन क्या है और कश्मीर किस तरह से
पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन पॉलिसी चैलेंज है, पाकिस्तान उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकता है। 2000 से ये जो है 18 में ये जो है कश्मीर के ऊपर सवाल पूछा गया था कि ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इन साउथ सुडान एंड for that matter East Timor was exemplary. Do you believe that such a humanitarian intervention is also possible in Kashmir? एक और सवाल पूछा गया कि भाई मुशर्रफ के 4-point फॉर्मूले को आप कैसे देख सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस एनालाइज करें। तो आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए वो भी अपने सब्जेक्ट्स में इनकॉर्पोरेट करने, और ये बात मैं बिलखुसूस उन एस्पायरेंट्स को लाजमी कहूंगा जो इस साल अटेम्प्ट दे चुके हैं, अब इस जो है ना आइडिया में परेशान है कि अब उनके पास कोई क्या चीज होनी चाहिए। नाउ दैट वी आर इन हेवन व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो आपने ये चीज जो है वो करनी है। उसके बाद कंटेम्प्रेरी डिबेट इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्या चल रही है आपने वो भी तैयार करनी है। मिसाल के तौर पर कंटेम्प्रेरी डिबेट ये कि भाई डू यू बिलीव दैट मोदीज कश्मीर पॉलिसी वुड हैव सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस फॉर साउथ एशिया। आप ये भी कह सकते हैं कि डू यू बिलीव दैट कश्मीर इशू वुड बिकम अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इस तरह की जो कंटेम्प्रेरी इस साल के हवाले से जो इस पर्टिकुलर इशू में डेवलपमेंट हो वो आपने तैयार करनी होगी। तो इसको अगर मैं क्विकली समराइज कर लूं तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक हो गई, उसके ऊपर रीडिंग हो गई, फिर उसके ऊपर रीडिंग के दौरान मैक्सिमम हेडिंग्स में उसकी कन्वर्जन हो गई, फिर आपने क्या कर लिया उसकी राइटिंग हो गई, फिर आपने पास्ट पेपर्स में देख लिया, फिर आपने जो कंटेम्प्रेरी डिबेट है वो देख ली। अब उसके बाद एक छोटी सी टिप आपने वो भी जहन में रखनी है, और वो टिप ये है कि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो मैप हो, कोई डायग्राम हो, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो, कोटेशन हो, रेफरेंसेस हो, ये आपने लाजमी कलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये चीजें जब आपके नोट्स में होती हैं यकीन कीजिए आप तभी इन्हें एक्चुअल एग्जाम में लिख पाते हैं। और इस वजह से मैं अक्सर एस्पायरेंट्स जो मेरे पास पढ़ते भी हैं करंट अफेयर्स के इशू, ये जो सेशन है या ऐसे के सेशन में, तो मैंने यही बात कहता हूँ कि भाई व्हाट यू डू इन एग्जाम रूम डिपेंड्स लार्जली ऑन व्हाट यू डू व्हेन यू आर नॉट इन एग्जाम रूम। क्या आप एग्जाम रूम में वही परफॉर्म कर पाते हैं जो परफॉर्मेंस आपकी तब होती है जब आप एग्जाम रूम में नहीं होते। तो आपने इन तमाम तर चीजों का ख्याल करना है और उसके बाद अपने आप को असेस करा लेना है। अब ये जो आपने नोट्स बनाए ये आपके होंगे फर्स्ट फेज के नोट्स, यानी कि आपने जब पहली तैयारी शुरू की थी तो उसमें आपने नोट्स बनाए, इनका ताल्लुक, इनकी लेंथ वहां तक होनी चाहिए जहां तक आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। आपने जब रिवीजन शुरू करनी है तो इन्हीं नोट्स को आपने 1/3 कर लेना है, बिकॉज यू डोंट नो कि विच अटेम्प्ट यू आर गोइंग टू क्वालिफाई। क्या फिर ऐसा हो कि एक अटेम्प्ट देने के बाद खुदा न खासा वो रिजल्ट्स नहीं आए जो आप चाहते थे, या आपके लोकेशन नहीं हुई, या आपको डिजायर्ड ग्रुप नहीं मिला, तो क्या ये फिर आप करेंगे कि जीरो से तैयारी शुरू करें? कम ऑन, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको ये वाले जो नोट्स हैं ये हेल्प आउट करेंगे किसी भी वर्स्ट केस सिनेरियो से मीट करने के लिए, फेस करने के लिए। और आपने ये जो 1/3 नोट्स बनाए ये आपके एग्जाम स्पेसिफिक नोट्स होंगे जिन्हें आप एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर सकेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट नोट्स मेकिंग स्किल। अब हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है, हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम उसे एनालाइज करेंगे। आपने जो भी टॉपिक बनाना है उसके ऊपर ना एक पहले पेज के ऊपर इस तरह की एक डिटेल आउटलाइन बना लेनी है जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है। मिसाल के तौर पर हम इसमें डिस्कस करेंगे हाइब्रिड वॉरफेयर क्या है, रियासतें इसकी तरफ क्यों गई हैं, इसकी टूल्स एंड टेक्निक्स क्या है, इसके एनालिसिस करेंगे, फिर इसका वे फॉरवर्ड बताएंगे। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हाइब्रिड वॉरफेयर की शुरुआत मार्च 2018 में शुरू होती है जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ अपनी स्पीच में पीएमए काबुल की स्पीच में कहते हैं कि भाई our enemies know that they cannot beat us fair and square and have thus subjected us to a cruel, evil and protracted hybrid war. और उसके बाद पाकिस्तान में इस वॉर का डिस्कोर्स शुरू होता है और पाकिस्तान में मुख्तलिफ ये जो इश्यूज हैं सिक्योरिटी के, फॉरेन पॉलिसी के, इकोनॉमी को, उनको ब्रॉडर हाइब्रिड वॉरफेयर के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ा जाता है। अब हाइब्रिड वॉरफेयर मुख्तलिफ पैराहों से लड़ी जाती है, उससे बात करने से पहले हम इसकी एक डेफिनेशन एस्टैब्लिश करते हैं। आपने याद रखना है कि एग्जाम में जो भी आपने डेफिनेशन लिखनी होगी वो किसी सोर्स के साथ आपने लिखी हुई हो, क्योंकि उससे फिर पता चलता है कि आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं और आपने जो तैयारी की है वो बिल्कुल एक परफेक्ट मैनर में, पॉसिबल परफेक्ट मैनर में की है।
मसलन आपने ये डेफिनेशन लिख ली जो कि हमने यहाँ पे लिखी है, हाइब्रिड वॉरफेयर इज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी दैट implies a blend of kinetic operations and subversive efforts to destabilize an adversary. It may also be defined as a non-linear or non-traditional war. और ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है वो विलियम मुरे की लिखी है, उनकी किताब है हाइब्रिड वॉरफेयर फाइटिंग कॉम्प्लेक्स अपोनेंट्स फ्रॉम द एंशिएंट वर्ल्ड टू द प्रेजेंट, जिसका सादा अल्फाज में मतलब ये है कि भाई मुख्तलिफ ये जो टूल्स ऑफ वॉरफेयर है, हाइब्रिड वर्ड ही बताता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स, यानी कि मुख्तलिफ जो नेचर टूल्स ऑफ वॉरफेयर थी उन सबका कॉमन होना और एक ही सिंक्रोनाइज्ड स्ट्रेटेजिक स्क्रिप्ट के तहत इस एक जंग का लड़े जाने का नाम हाइब्रिड वॉरफेयर है। और इसका अल्टीमेट एंड ये होता है कि दुश्मन को जो है ना एनाइलेट मुकम्मल नहीं करना, लेकिन उसको कमजोर जरूर करना है, उसमें इतनी इंस्टेबिलिटी आ जाए, उसे इतना डिस्टेबलाइज किया जाए कि एक रियासत इनवर्ड लुकिंग स्टेट बन जाए, ना कि आउटवर्ड लुकिंग स्टेट बन जाए। अब सवाल पैदा होता है कि रियासतें हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ इन फर्स्ट प्लेस जाती क्यों हैं? अब इस सवाल को अब हम एड्रेस करने के लिए हम ये जो गुफ्तगू है ये कर लेते हैं। रियासतें हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ इसलिए भी जाती हैं, सबसे पहले रीजन ये है कि मौजूदा हालात में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कहीं ना कहीं पे एक इन्फ्लुएंस है। रियासतें इस बात से हेजिटेट करती हैं कि उनकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में नेमिंग एंड शेमिंग हो कि वो एक एग्रेसर स्टेट हैं, और अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए रियासतें फिर हाइब्रिड वॉरफेयर की तरफ जाती हैं। सेकेंड आर्ग्यूमेंट इसके पीछे ये है कि इंटरनेशनल लॉ का बढ़ता हुआ असर रसूख और ये एक इंप्रेशन देना कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी इनवायलेबल चीजें हैं, ये भी रियासतों को पुश करता है कि भाई आपने किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह से आपने जो है हाइब्रिड वॉरफेयर या किसी भी ये जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर उसको ट्रिगर नहीं करना। तो रियासतों को लगता है कि भाई जब इंटरनेशनल लॉ भी मना करता है कि सॉवरेनिटी वायलेट नहीं हो सकती, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वायलेट नहीं हो सकती, तो हमारे पास ऑप्शन ही क्या बच जाती है। और थर्ड ये कि इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन इंटर स्टेट वॉरफेयर के बिल्कुल खिलाफ हो चुका है, बिलखुसूस जब से न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, जब से जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक जितने ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गए, तो इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन इस बात को हरगिज अलाउ नहीं करता कि भाई रियासतें एक फुल ब्लोन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएं। इवन स्टेट्स लाइक ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स हेजिटेट टू गो टू अ फुल ब्लोन वॉर, and that is precisely why because the cost of war is too much and states are hesitant to pay that very cost. तो फिर उसके लिए रियासतें चाहती है कि अच्छा अगर हम टोटल वॉर की तरफ नहीं जा पाते, लिमिटेड वॉर की तरफ नहीं जा पाते, तो चलें ठीक है, फिर हम हाइब्रिड वॉर सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं जिसमें मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करेंगे एक रियासत को वीकन करने के लिए। अब उसमें जो दीगर हम बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रेटजीज रियासतें यूज करती हैं दूसरी रियासतों को कमजोर करने की, वो कुछ इस तरह से रियासतें मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज यूज करती हैं। जैसे टूल्स एंड टेक्निक्स में सबसे पहले आ जाता है डिप्लोमेटिक मीन्स आती है। रियासतों की कोशिश होती है कि दूसरी रियासतों को या तो एक डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ लिया जाए, जैसे इंडिया की कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी का एक पिलर है कि भाई पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ना सुने, या ये कि पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के नाम से पुकारा जाए, जो है ना लेबल लगा लिया जाए, पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, इंटरनेशनल इमेज है, उसे जो है ना कमजोर किया जाए। दिस इज जस्ट वन फॉर्म ऑफ फाइटिंग अ हाइब्रिड वॉर। उसके अलावा डिप्लोमेटिक मीन्स ये भी हो सकती हैं कि दूसरे ममालिक के साथ इत्तेहाद बिल्ड किया जाए, अलायंस स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए जो कि अपने आप में डिफेंसिव ना हो बल्कि अपने आप में ऑफेंसिव हो। जैसे मौजूदा हालात में इंडो यूएस नेक्सस नजर आता है, इंडिया की जो जबान है वही है जो अमेरिका की जबान है, यानी कि इवन अमेरिकन्स एक्चुअली स्पीक इन द इंडियन इडियम, इंडियन लैंग्वेज में पाकिस्तान से बात करते हैं, पाकिस्तान को डू मोर की पॉलिसी के ऊपर जो है ना कहते हैं, सो ऑन। सेकंड है टूल और टेक्निक वर्ड डिस्गाइज्ड एनजीओज। एक रियासत में मुख्तलिफ एनजीओज काम करती हैं जो कि उनका आउटर कवर तो ये होता है कि आउटलुक ये होती है कि भाई हम तो फलाई काम करने जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो इंटरनल एक्टिविटीज होती हैं वो किसी खास डीप स्टेट के जो है ना उंगलियों पे काम करती हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एक एनजीओ थी सेविंग द चिल्ड्रन। इसका जो बाहर से काम हमें नजर आता था वो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना था।
लेकिन असल में इसका काम ये था कि उसामा बिन लादेन का जो एबटाबाद में कंपाउंड था उसकी निगरानी की जाए, वहां से बच्चों के सैंपल्स लिए गए और फिर जिसके डॉक्टर शकील अफरीदी जो है पाकिस्तानी जेलों में बंद भी है। तो बाद में पता चला जब बीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, चौधरी निसार ने कहा कि भाई ये जो सेविंग द चिल्ड्रन एनजीओ थी ये तो अमेरिकन सीआईए के कहने के ऊपर काम करती थी। तो अगेन डिस्गाइज्ड एनजीओस आर आल्सो अ टूल ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। उसके बाद इकोनॉमिक मीन्स हो सकती हैं किसी मुल्क को कमजोर करने के लिए। मिसाल के तौर पर ईरान के खिलाफ अमेरिका की जो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन है उसका एक एलिमेंट यह है कि ईरान का जो ऑयल है वो ग्राउंड जीरो पे लाया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ इंडो अमेरिकन जो हाइब्रिड वॉर है वो ये है कि सबसे पहले आईएमएफ को इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान के जो गर्दन है उसके गिर्द घेरा तंग करने के लिए, और ये अमेरिकन ने किया भी कि भाई पाकिस्तान must deliver Afghan Taliban on negotiating table, otherwise we will tighten noose through IMF on Pakistan. सेकंड इकोनॉमिक मीन्स ये हो सकती है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल किया जाए, जैसे एफएटीएफ है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। उसके बाद इकोनॉमिक मीन्स ये भी हो सकती हैं कि एक मुल्क के खिलाफ ट्रेड वॉर इनिशिएट की जाए, जैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर हमें नजर आती है। तो इकोनॉमिक मीन्स भी एक मुल्क में जो है एक इंपॉर्टेंट टूल होती है हाइब्रिड वॉरफेयर का। उसके बाद होती है सोशली इंजीनियर्ड प्रोटेस्ट, और इन सोशली इंजीनियर्ड प्रोटेस्ट की हम बात कर सकते हैं कि भाई एक मुल्क में किसी एक इशू के ऊपर जो है ना अगर एहतजाज हो तो इंटरनेशनल सपोर्ट उससे मिलना शुरू हो जाए। जैसे पाकिस्तान में कुछ छोटे मोटे एहतजाज होते हैं तो फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ रियासतें पाकिस्तान के रीजनल जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके स्टेटमेंट आना शुरू हो जाते हैं, हालांकि उनका पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर से कोई लेना देना नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे अमेरिका ने अरब स्प्रिंग इंटरवेंशन की, उसमें सोशल इंजीनियर्ड प्रोटेस्ट को कुछ को सपोर्ट किया। इनहेरेंट मकसद ये होता है कि भाई हम एक रियासत अपनी स्ट्रेटेजिक एंड्स अचीव करने ऑन द कॉस्ट के भाई बेशक अगले मुल्क में जो इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोशल मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है इस पर्टिकुलर जो है वो वॉरफेयर का, जिसमें प्रोपेगेंडा के थ्रू, फेक न्यूज के थ्रू एक स्ट्रेटेजिक नैरेटिव शेप किया जाता है ताकि दूसरे दुश्मन मुल्क के खिलाफ एक साइकोलॉजिकली जंग जीती जाए, जिसे हम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहते हैं, मीडिया वॉरफेयर भी कहते हैं, या टॉक्सिक ट्विटर वॉरफेयर भी कह सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें हैं वो भी इस्तेमाल होती हैं, वो भी अलाकार होती हैं, जैसे टीटीपी इंडियन प्रोपेगेंडा के तहत चलती है, एनजीएस के तहत चलती है, और पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटीज के लिए मैक्सिमम कॉस्ट लेके आती है। हाइब्रिड वॉरफेयर का फिर सोल्यूशन क्या है? हाइब्रिड वॉरफेयर के यूं समझ लें कि हाइब्रिड सोल्यूशन, एक वर्ड में अगर हम इस आर्गुमेंट को बंद करें तो वो ये है कि हाइब्रिड वॉरफेयर रिक्वायर्स हाइब्रिड सोल्यूशन। यानी कि अगर हम इस जंग लड़ना चाहते हैं तो हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी ये डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करना होगा, हमने इकोनॉमिक फ्रंट पे भी एक वायबल ना के फेल्ड स्टेट बनना होगा, हमने अपना मिलिट्री ये जो प्रिपेयर्डनेस है वो भी मेंटेन करनी होगी। लेकिन उन सब चीजों से बेहतर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने डोमेस्टिक जो पॉपुलेशन है उनकी जो डिमांड्स हैं उनको बड़ा सीरियस लेना होगा, क्योंकि एक रियासत का सबसे बड़ा एसेट उसके लोग होते हैं। अगर उन लोगों की फलाह बहबूद ना होगी तो वो लोग हो सकता है कि उस रियासती स्ट्रक्चर से ही अपने आप को दूर दूर कर दें। तो रियासत की ये कोशिश होनी चाहिए कि लोगों की जो डिमांड्स हैं उनकी तरफ एक इनडिफरेंस ना हो, उनकी डिमांड्स को अंडरस्टैंड किया जाए, और जो स्टेट सिटीजन रिलेशनशिप है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तहत इसे रीबिल्ड किया जाए, ताकि कोई भी फॉरेन एलिमेंट्स एक मुल्क के अंदर वाली पॉपुलेशन को जो है ना अपनी फेवर में ना कर सकें, या उनमें कोई लोग रिक्रूट करके उन्हें अपने जो मकासद है उनके लिए इस्तेमाल ना कर सकें। साइबर फ्रंट पे भी चूंकि ये जो है जंग लड़ी जाती है तो हमें इस बुनियाद के ऊपर भी ये जो है ना काम करना चाहिए कि वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑल फ्रंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी डिस्कस। तो बुनियादी मकसद ये था कि आज की ये जो क्लास है वो कंडक्ट की जाए आप लोगों के साथ, जिसमें हम दोनों चीजों के ऊपर बात कर लें, एक तो हम नोट्स मेकिंग के ऊपर बात कर लें और हाइब्रिड वॉरफेयर के ऊपर बात कर लें, और इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए आपको ये भी आइडिया हो जाए कि एक टॉपिक जो है वो डेवलप कैसे होता है, एक टॉपिक के बारे में स्टडी प्रिपेयर कैसे होती है। तो यहाँ तक हम ये गुफ्तगू करते हैं, अलबत्ता उसके अलावा भी हम इंशाल्लाह हर वीक किसी न किसी टॉपिक के साथ आएंगे। तो आपने काम करना है, आपने नोट्स बनाने हैं, आपने इस हवाले से कोई चीज डिस्कस करनी हो तो अगेन यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू दिस पेज,
اور اس پیج میں آپ کو لنکس بھی ہے, میرا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے. آپ ہمارے سیشنز جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یو آر موسٹ ویلکم فار دیٹ ایز ویل. اور انشاءاللہ ہم ڈیز ٹو کم ملیں گے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو می ویری پیشنلی اینڈ کیپنگ دس فریم ورک ان مائنڈ. آئی جسٹ ایکسپیکٹ کہ یو گائز ول فالو دس روٹ. Thank you so much, gentlemen. Long live the struggle.